watching Chinmay's Fizcast. In the last video, we have discussed about differential calculus. Today, we will focus on integral calculus. I will give you the basic idea about integral calculus, how to use it in solving different numericals and how to use it in different type of derivations. We will discuss about some basic formulae with some examples. So, let's get started. Integral calculus. If f and g are functions of x such that g dash x is equals to f of x, इसका मतलब derivative of g is equals to f, d by dx of g of x is equals to f of x. So in this case we can write the integral formula as integration over f of x dx is equals to g of x plus c, where c is the constant of integration. यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के ऊपर, किसका इंटीग्रेशन? फंक्शन f का इंटीग्रेशन, जिसका वैल्यू हमें मिलेगा g. क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ g इज इक्वल्स टू f, सो इंटीग्रेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू g. ऐसे कॉन्सेप्ट में हमें इसे याद रखना है, where c is the constant of integration. एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग दो तरीके के इंटीग्रेशंस फेस करेंगे. एक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अनदर वन इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. In case of indefinite integrals, there will be no limit, but in case of definite integral, we will have the a lower limit and an upper limit. तो उन दोनों के बीच हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है. वहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो लिख रहे हैं हम लोग, ये नहीं रहेगा. लेकिन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमें लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ओवर x टू दी पावर n dx क्या होगा? x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. वैसे ही हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स टू 1 बाई x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x विल बी इक्वल्स टू log x. डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, so integration over e to the power x dx equals to e to the power x plus the constant of integration. Derivative of a to the power x dx will be equals to a to the power x log a. So integration over a to the power x dx will be equals to a to the power x divided by log a plus c. Now come to the trigonometric ratios. Integration over sin x dx is equals to minus cos x plus c. Why? Derivative of cos x is minus sin x. So integration over sin x is equals to minus cos x plus c. Similarly, derivative of sin x is equals to cos x. So integration over cos x dx is equals to sin x plus c. Similarly, d by dx of tan x is sec square x. So integration over sec square x dx is equals to tan x plus c. Derivative of cot x is equals to minus cos x square x dx. So integration over cos x square x dx equals to minus cot x plus c. Derivative of sec x is equals to sec x into tan x. So integration over sec x into tan x dx equals to sec x plus c. Derivative of cosec x is equals to minus cosec x into cot x. So integration over cosec x into cot x dx equals to minus cosec x plus c. So these are the basic important formulas in integration which we have to use. Now let's apply this formula in different numericals. First question, integration over x square plus 5x minus 1 divided by root x dx. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, that is equals to, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ओवर x square divided by root over of x, so x to the power 1 by 2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा? 5x divided by x to the power 1 by 2. Clear? Then minus 1 by x to the power 1 by 2.
ये हो गया मेरा पूरा एक्सप्रेस। सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट टर्म, देखिए ऊपर है x टू द पावर 2, नीचे x टू द पावर 1/2, तो x टू द पावर 2 माइनस 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस 5 x टू द पावर, इधर है 1 माइनस 1/2, इसे मैं ऊपर ले रही हूँ, माइनस 1 by x to the power 1/2, that means x to the power minus 1/2, this much dx. So that is equals to, अभी इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वही हम लोग यूज करेंगे। x to the power n dx क्या होता है, x to the power n plus 1 divided by n plus 1, तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। So x to the power 2 minus 1/2, इसे एक स्टेप और सॉल्व कर लेती हूँ मैं। x to the power 2 minus 1/2, तो 4 minus 1/2, so 3/2 plus 5 x to the power 1/2 minus x to the power minus 1/2 dx. So that is equals to फर्स्ट टर्म x टू द पावर 3/2, यहाँ पे n क्या है 3/2, तो मैं लिखूंगी x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c आएगा यहाँ पे। सपोज मैं उसे c1 ले रही हूँ, यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के लिए c1, सेकेंड टर्म के लिए c2, थर्ड टर्म के लिए c3, तीन कांस्टेंट्स आएंगे, उन्हें ऐड करके भी एक ही कांस्टेंट मिलेगा, तो मैं लास्ट में सिर्फ एक ही c लिख दूंगी, ठीक है। प्लस 5 है कांस्टेंट, बाहर आ गया, x टू द पावर 1/2, so here n is equals to 1/2, so I am writing x to the power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 plus minus x to the power minus 1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1 plus c. Clear? Now I have x to the power 5/2 divided by 5/2 plus 5 into x to the power 3/2 divided by 3/2 minus x to the power 1 minus half, so half divided by 1 minus half, half. So that is equals to 2 by 5 x to the power 5/2 plus यहाँ पे 3/2 तो मल्टीप्लाई होगा 2/3, 2 into 5, so 10 by 3 x to the power 3/2 minus 2x to the power 1/2 plus c. This is my answer. Next problem, integration over tan square x dx. Here we will use the basic trigonometric identity. We know that 1 plus tan square x is equals to sec square x. Okay, so what is tan square x? Instead of tan square x, I can write down sec square x minus 1 here. So integration over sec square x minus 1 dx. So that will be equals to integration over sec square x dx minus integration over dx. 1 into dx dx. So that is equals to sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया, that will be equals to tan x minus integration over dx will be equals to x. इंटीग्रेशन ओवर dx, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना मतलब सम करना होता है, सम करना, कंटिन्यूअस समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन बताते हैं। सो dx इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x, सो वैसे ही छोटा छोटा dx, उसे हम लोग कंटिन्यूअस समेशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल x मिलेगा, सो माइनस x प्लस c, दिस मच इज द आंसर. Again another question is here, dx divided by sin square x into cos square x. इसका इंटीग्रेशन करना है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ओवर 1 by sin square x into cos square x dx. No problem. So that is equals to, see, here also we will use another trigonometric identity.
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों के बीच का कुछ रिलेशन होता है 1 के साथ। वो क्या होता है, मैं 1 की जगह पे लिखूंगी ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx. Clear? Now I can get two terms, that is equals to integration over sin square x divided by sin square x into cos square x, first term this much divided by this much, प्लस न्यूमरेटर में प्लस है इसलिए मैं इसे टर्म अलग अलग लिख सकती हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर में होगा तो नहीं लिख सकती। cos square x divided by again sin square x into cos square x, इतना हो सकता है with dx. So now I can write integration over, see, sin square x cancels out. So I have 1 divided by cos square x here plus cos square x cancels out. So I have 1 divided by sin square x with dx. What is 1 by cos square x? That is x square x. 1 by sin square x, that is cos x square x. So that is equals to integration over sec square x dx plus integration over, I can write down cos x square x dx. So this will be equals to tan x, and integration over cos x square x is a minus cot x, so plus of minus cot x plus c. So my answer is tan x minus cot x plus c. अभी तक जितना प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया इंटीग्रल कैलकुलस का वो सारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन था, क्योंकि वहां पे हमें लिमिट नहीं दी गई थी इंटीग्रल का। तो यहाँ पे अगर हमें कोई लिमिट दिया गया होगा, जैसे कि देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लोअर लिमिट पे है 1, अपर लिमिट में है 2, इसका मतलब है 1 और 2 ये जो दो इंटीजर्स हैं उनके बीच जितने भी सारे वैल्यूज आएंगे उस सब वैल्यूज के लिए हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन 1 से 2 तक ही देखना है हमें, उससे आगे नहीं देखना। तो लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे 1, अपर लिमिट पुट करेंगे 2, उसे कैसे यूज करेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगी। इससे पहले हमने सारे जो क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे वहां पे लिमिट नहीं दिया गया था, इसलिए हम लोग एक जनरल वैल्यू निकालते थे प्लस उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता था। लेकिन यहाँ पे जिसलिए हमें यहाँ पे लिमिट का वैल्यूज फिक्स दिया गया है तो यहाँ पे वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग उसी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 5x square dx plus integration over 1 to 2 2x dx minus integration over 3 dx and the limit is 1 to 2. So that is equals to, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है 5, इस टर्म में कांस्टेंट है 2, इस टर्म में कांस्टेंट है 3, तो हम लोग कांस्टेंट को आउट ऑफ द इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अगर 5 को मैं बाहर ले रही हूँ तो ये आ गया मेरा 5, तो इंटीग्रेशन के बीच क्या रहेगा, x to the power 2 dx, x to the power 2 dx with limits 1 to 2 प्लस 2 बाहर आ गया, यहाँ पे रहेगा x dx माइनस 3 बाहर आ गया, यहाँ पे रहेगा सिर्फ dx। इतना तक समझ में आ गया। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड विथ x to the power 2 dx, इसका मतलब है n यहाँ पे 2 है तो मैं लिखूंगी x to the power 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1। देखिए नीचे है मेरा 1, ऊपर का लिमिट है 2, ऐसे लिखूंगी प्लस 2 into x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, ऐसे लिखूंगी। ये वाला टर्म हो गया माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन क्या है x, अभी हमने किया था
बाद क्या करना है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ. 5 मल्टीप्लाइड विथ x टू दी पावर 3 बाई 3, लिमिट है 1 to 2 प्लस 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 1 to 2 माइनस 3, यहाँ पे x है, लिमिट है 1 to 2. ठीक है. नाउ 5, ये है 1/3, तो ये आ गया मेरा 5/3 हो गया. यहाँ पे अभी क्या रहेगा, एक्स क्यूब. मैं सारा स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, तो आप लोग अच्छे से देखिए. प्लस 2 और ये नीचे है 2, दिस विल कैंसल आउट. अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर, बाहर है लिमिट 1 to 2 माइनस 3x, लिमिट है 1 to 2. क्लियर. नाउ वी विल यूज दिस लिमिट्स. तो बाहर है 5/3, उसे मैंने आज सच रख लिया. x की जगह पे पहले मैं अपर लिमिट की वैल्यू डालूंगी, उसके बाद माइनस करूंगी और फिर लोअर लिमिट की वैल्यू डालूंगी. देखिए x की जगह पे मैं 2 पुट कर रही हूँ, सो ये आएगा 2 to the power 3 माइनस नेक्स्ट लोअर लिमिट पुट करूंगी तो 1 यहाँ पे पुट करूंगी तो ये आएगा 1 का क्यूब. हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस वैसे ही यहाँ पे लिखूंगी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे पहले लिखूंगी 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 1. नाउ इसे सॉल्व कर देंगे. देखिए 5/3, ये आएगा 8 माइनस 1, तो ये आएगा 7 प्लस 2 स्क्वायर तो 4 माइनस 1, ये आएगा 3. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आएगा 3, तो ये तो कैंसल्स आउट. नाउ आई हैव द आंसर 35 डिवाइडेड बाय 3. तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसे ऐसे सॉल्व करते हैं. सिर्फ आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने हैं. इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला पहले यूज करना है और उसके बाद जो लिमिट दिया गया है उसे पुट करना है. पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट इन द फंक्शन. ओके. तो ऐसे ही आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो. देखिए यहाँ पे अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया होगा, sin x cos x tan x ऐसा कुछ होगा, तो उसकी जगह पे हमें क्या वैल्यू दी जाएगी. ये अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो वहाँ पे क्या वैल्यू दिया जाता है, एंगल में वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वो वैरी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एंगल्स. तो वहाँ पे एंगल की वैल्यू दी जाती है. सपोज 0 डिग्री से 90 डिग्री या फिर 0 to π/2 ऐसा लिखा होगा. ठीक है. तो इसे यूज करके आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं.